اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی سب لوگ؟ پریکٹس کی آپ نے سارے دن کی؟ جس نے تینوں دن کی ہاتھ اٹھائیں، شاباش، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، آج ہمارے مخارج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ اب ذرا اپنا الف بے کا ٹیبل دیکھنا شروع کریں نا۔ با کا سیٹ آپ نے کر لیا، تا کا سیٹ کر لیا، سا کا کر لیا، جیم کا کر لیا، ہا کا کر لیا، اور بچہ زود، ٹھیک ہے۔ اور قاف بچا، کاف بچا، باقی سارا ہو گیا آپ کا، مدات بھی ہو گئے۔ تو زواد جو ہے نا یہ ایک ہی حرف ہے، یہ طرفی حرف کہلاتا ہے۔ حروف طرفیہ ٹرم ہے مگر حرف ایک ہی ہے یہ بیچارہ، ٹھیک ہے۔ طرف کہتے ہیں سائڈ کو، تو یہ جو زبان کی سائڈ ہے، دائیں بائیں سائڈ، تو کوئی ایک سائڈ کسی کی دائیں لگتی کسی کی بائیں۔ جی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دماغ پہ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کی جو رائٹ ہینڈڈ ہے ان کی بائیں سائڈ ہی لگتی ہے، کوئی کوئی ہوتا ہے جس کی دائیں لگتی ہے۔ دائیں سائڈ آپ کی زبان کی، آپ کی داڑیں جو ہے نا ان پر جا کے لگتی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور دوسری طرف والی ڈھیلی رہتی ہے۔ ایک طرف والی چپک جاتی ہے، ایک طرف والی ڈھیلی رہتی ہے، اور پھر یہ لفظ جو ہے، حرف جو ہے، یہ ادا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کیونکہ اردو میں کوئی مخرج نہیں ہے، شروع میں ہمیں اس کو سوچ کے لگانا پڑتا ہے۔ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہوتا بھائی، ہر ڈفرینٹ چیز پہلے پہلے مشکل لگتی ہے۔ آپ کو پلاؤ بنانا شروع سے آتا تھا، یعنی کہ جب سے کھانا سیکھا، تو جب بریانی شروع میں بنائی تو تھوڑا فرق سبھی کو آیا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ آ گئی۔ جب آپ نے پہلی بار چائنیز رائس بنائے ہوں گے تو ڈفرینٹ لگے ہوں گے، پھر آ گیا۔ تو ایک ڈفرینٹ ہونا اور ایک مشکل ہونا، مشکل کیا ہے؟ مشکل جس نے کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ عربی میں یہ ایک خاص ساؤنڈ ہے جو دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی۔ اچھا مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ پہلی بار جب میں نے جن سے سیکھا، اللہ ان کو برکت دے، میں بہت قدر کرتی ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتنا مشکل حرف ہے کہ عربی کو لغت الزواد کہتے ہیں۔ یہ درست ہے، عربی کو لغت الزواد کہتے ہیں، مگر اس وجہ سے نہیں کہ یہ مشکل ہے، اس وجہ سے کہ یہ مختلف ہے۔ کسی زبان میں آپ کو زواد جیسا ساؤنڈ نہیں ملتا، یہ ہر چیز کی اسپیشلٹی ہو جاتی ہے نا، تو یہ اس کی اسپیشلٹی ہے اس زبان کی۔ تو اس کے اس حرف جیسا ساؤنڈ آپ کو کسی زبان میں نہیں ملے گا، کسی زبان میں نہیں ملے گا۔ را کا ملتا جلتا، جیم کا ملتا جلتا، سین کا ملتا جلتا مل جائے گا نا، لیکن زواد کا ہم آواز لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس لیے اسے لغت زواد کہتے ہیں، not because it is difficult, just because it is different۔ تو یہ بالکل غلط فہمی دماغ سے نکال دیجئے۔ دیکھیں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، ہر نئی چیز مختلف ہوتی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کون کون ہے جس نے شروع میں کوکنگ مٹی کے چولہے پہ کی ہے، مٹی کے تیل کے چولہے پہ آئی ہوئی؟ ہاں جی، تو پھر جب تو گیس سے شفٹ ہوئے تھوڑا مشکل لگ گیا نا، گیس جلدی پکا دیتی تھی، روٹیاں سڑ جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ عادت ہوئی۔ آپ دوبارہ اگر آپ مٹی کے تیل کے چولہے پہ شفٹ ہو تو مشکل ہے نا؟ یہی بات ہوتی ہے، یہی فرق ہوتا ہے۔ کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز آسان نہیں، جب آپ ایک سے دوسری چیز میں جاتے ہیں تو مشکل تو آتی ہے۔ اچھا بٹنوں والا موبائل کس نے یوز کیا؟ نوکیا، وہ کیا ہوتا تھا، 3310، تھینک یو، نوکیا 3310 کس نے یوز کیا؟ اب جب اس سے ہم اس پر آئے تھے، شروع میں آپریٹ نہیں ہوتا تھا ٹچ اسکرین والا،
कुछ समझ ही नहीं आती थी, करना कुछ चाहते थे होता कुछ था। और अब अगर 3310 इस्तेमाल करना पड़े तो मुझे तो उसके बटन, उस दिन भी मेरे मियाँ किसी का था तो मुझे कहने लगे कि ये कॉल मिला दो, तो मैंने कहा मुझे कहाँ से मिलाऊं, कहाँ से मिलाऊं, पता ही नहीं चलता है ना। यही बात, हर नई चीज थोड़ी सी मेहनत से आती है। मुश्किल क्या है? कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। जिस लफ्ज को लाखों अरब बोलते हैं, जिनमें अनपढ़ अरब मौजूद है, सारे अरब तो पढ़े लिखे नहीं है ना, अनपढ़ जाहिल देहाती अरब बोलते हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते भाई? सिर्फ थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो ज़ौद कैसे बोला जाता है? जुबान की एक तरफ की करवट यानी साइड यानी तरफ ऊपर दांतों की दाढ़ों के साथ लगती है, पूरी कुव्वत के साथ। दांत ना एक तरह उसके ऊपर प्रेस हो जाते हैं और फिर अदा होता है ज़ौद। लिहाजा अगर आप किसी को ज़ौद बोलते हुए देखें तो जो दाएं से बोलेगा उसका दाएं से मुंह थोड़ा सा इधर जाएगा ज़ौद, और जो बाएं से बोलेगा उसका बाएं तरफ थोड़ा सा मुंह मोटा होगा, यानी लगेगा उससे गाल में कुछ दबा लिया, क्योंकि वो जुबान लगती है ज़ौद। तो ये होती यूं है, समझे, ये तालू है और ये जुबान है, तो ये दांत है ये। तो दांतों के साथ जुबान ऐसे चिपक गई, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ से थोड़ी ऐसे है, तो ये अब निकल रही है आवाज इसमें से, ये जो टनल बना, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। ठीक हो गया। शुरू शुरू में कैसे करेंगे? शुरू शुरू में ऐसे करेंगे कि आप जुबान उठा के दांतों के साथ दाढ़ों के साथ लगा कर अदा करेंगे। ठीक, अभी आप यही करें। बाईं तरफ से जुबान को, ये जो दाढ़े जिनके नीचे आप चिबाते हैं, ये चौड़े जितने दांत हैं 4-5, इन सब के नीचे ये 5 पूरी दाढ़े इनके नीचे लगेंगे, लगाएं। और लगाने के बाद वहां आप रोकें और फिर मेरे साथ अदा करें। लगा लिया सबने? रोद। जब आप बोलेंगे दोबारा ऊपर जाके लग जाएगा, ठीक है। जब आप बोलेंगे करेंगे तो हटेगी, नेचुरल है, का साउंड ही निकलेगा ना, वो हटती इसलिए कि मुंह खुल जाता है और जब आप वापस नीचे आएंगे वो फिर जाके लग जाएगी, ठीक है। तो रोद, पीछे से जुबान उठाएंगे क्योंकि ये सबसे मोटा हर्फ है, ठीक है। रोद, इसे द्वाद भी पढ़ते हैं ज़ौद भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। इस पर जो बहस है वो फजूल है, ठीक है, उसका कोई मकसद नहीं। हाँ ये दुरुस्त है कि ज्यादा मेजोरिटी ज़ौद पढ़ती है, मगर वो इतना उसको मोटा और अदा किया जाता है कि वो समझ नहीं आती कि ज़ौद है कि दुआद है। तो आप जैसे चाहे पढ़े, वैसे दोनों प्रोनाउंसिएशन प्रूवन है, तो बहस की कोई बात नहीं। हमारे मुल्क में ये होता है, अरब नहीं करेंगे, अरब ना आपको ज़ौद पे टोकेंगे ना दुआद पे टोकेंगे। हाँ हमारे कारी कहेंगे तुसी गलत पढ़ दे पे, ये गलत नहीं है। ये दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, दो अलग अलग किरातों के तहत, और दोनों दुरुस्त है। ज़ौद पढ़ लें दुआद पढ़ लें, असल बात ये है इसको मोटा अदा करना है और इसको इसके मखरज से अदा करना है। गोद, गोद, इसमें बाद में जुबान को नीचे मत आने दे, ठीक है। अब ये तो इसका नाम है ना, अब इसका जो प्रैक्टिस है वो तो साकिन करके करेंगे, है ना। हमजा जबर ज़ौद और, हमजा जेर ज़ौद इर, हमजा पेश ज़ौद उर, ये मोटा ही रहना है ना, ये मोटा ही रहना है, इसको जेर से भी कोई खास फर्क नहीं आना, क्योंकि इट सेल्फ है ही मोटा, और ये सबसे हैवीएस्ट लेटर है, ठीक। लिहाजा और जब आप साकिन करेंगे फिर आपको सही अंदाजा होगा, उसमें जुबान चिपक जाएगी, हिलेगी नहीं। वो ज़ौद में दो रीजन से हिलती है जब उसका नाम प्रोनाउंस करते हैं। पहले जब ज़ौद जबर अलिफ है ना, तो वो जो मद आती है बड़ी मदन, तो जो इसम के अंदर ये जो ज़ौद हर्फ का इसम है, तो वो जब लंबा करते हैं जो, तो वो मुंह खुले गए। दूसरा एंड किस पे हो रहा है इसम का? दाल पर, दाल तो हैवी नहीं है, वो इस वजह से फिर
मखरज आपको लगता है चेंज हुआ, वो मखरज इसलिए चेंज हुआ कि जो इस्म है, ज़ुआद हर्फ का इस्म है, उसके अंदर दाल भी है ना, उसके अंदर अलिफ भी है, इसलिए चेंज हुआ। लेकिन जो इसका साउंड है उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें फिर आपका मखरज जम जाता है, आपकी जुबान दाढ़ों के साथ चिपक कर ये अदा होता है। ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस अभी करते हैं, मैं बोलूंगी आपने बोलना है, आपको इंटेंशनली अपनी जुबान को जोड़ना पड़ेगा अभी के लिए, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने भी प्रैक्टिस की है तो एक्सपीरियंस किया होगा, आप बगैर कोशिश के होता है, लेकिन शुरू में करनी पड़ती है। ठीक, आओ आओ, एक तो आपकी जुबान पीछे की तरफ उठी होगी और दूसरा साइड से आप इसको जोड़ेंगे, आओ। आपकी सांस खत्म हो जाती है भाई, जैसे कि हमजा में खत्म होती है ना, इसमें भी खत्म हो जाती है, सांस भी खत्म हो जाती है और जुबान भी अटक जाती है। आओ 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 आओ। अच्छा, आप बोलिए। अच्छा, अब आप फिर बोलिए, ध्यान से सुने, आप फिर बोलिए। क्या हो रहा है? आवाज रुक जाती है, बंद हो जाती है, आवाज खत्म हो जाती है, क्योंकि सांस खत्म हो जाता है। आवाज तो हवा के साथ चलेगी ना, तो हमारी बॉडी में हवा क्या है, सांस है ना, तो सांस रुक जाता है, उसके आगे आप बोल नहीं सकते। वो हम बोलते हैं इस वजह से कि हम जुबान वहां से हटा कर अगले लफ्ज में चले जाते हैं। जैसे फर्ज करो दुआ लीन है तो वलब, वलब वहां रुक गया, अब आप कुछ नहीं बोल सकते अनटिल और अनलेस के आप जुबान मूव करें। तो वलब लीन, हम वो आगे चले जाते हैं। अगर मैं अपनी जुबान वहीं रोके रखूं तो मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगी, आई विल बी लॉक्ड ओवर देयर। तो ये ज़ौद की कैफियत ताकत की वजह से है, हमजा की तरह। हमजा में भी बहुत ताकत होती है, ज़ौद में भी बहुत ताकत होती है, इनकी ताकत की वजह से ये अपने मखरज में बंद हो जाते। आव, इज, उज, ये चलती नहीं है। हाँ, यहाँ से ये चीज भी सीख ले, जो सख्त होते हैं वो रुक जाते हैं, आवाज में भी यही है, और जो नर्म होते हैं वो रवा रहते हैं, जैसे जोए, जो, अज, 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 जितना चाहे चला लो, जाल, अज, 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 चलती हुई साउंड है। लेकिन अच्छा, मैं वही देख रही थी, माशाल्लाह, जो हम गए थे सैटरडे को, तो जो कारिया थी, आई विल नॉट टेक हर नेम, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कारियां हैं, मगर उन्होंने जब आइन पढ़ा, आइन साकिन, तो उन्होंने भी झटके से पढ़ा। नोटिस किया आपने? नहीं किया? जब कोई किरात किया करे सुना करे और नोटिस किया करे। उन्होंने भी जब वो आयत जब तिलावत की तो समीअना व अत्वाअना, आइन पर किस बात का झटका भैया? हमजा पढ़ा आपने, और वो हमजा भी नहीं है, क्योंकि मखरज आप आइन का यूज कर रहे हैं, झटका आप हमजा का दे रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कारियां हैं, मगर ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। और एक और सबक सीखे, किसी लेवल पर आप ये नहीं कह सकते मैनू आ गया, हमेशा इंप्रूव करें, हमेशा इंप्रूव करें और अपनी गलतियां पकड़ें, और हो सके तो उनसे कहिएगा, क्योंकि कारियां हैं ना, बच्चों को पढ़ाती होंगी, तो जिस चीज को सिखाएंगी वो गलती आगे 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 ट्रांसफर होती जाएगी। तो इन अ नाइस वे उनको बताएं कि आप आइन पर झटका करती हैं, झटका हमजा पर होता है, आइन साकिन पर नहीं होता। तो आप अपना रिकॉर्ड करके कोई ऐसा हिस्सा सुने और अपनी गलती को दूर करें, क्योंकि जिस चीज को पढ़ाएंगी आप उसको आगे ट्रांसफर करती जाएगी। हाँ, खैर, अल्लाह सबसे कबूल करे। ये असल में कोई कमी नहीं है, ये गलतियां हैं, क्योंकि एक जुबान से दूसरी जुबान है ना, इस वजह से ऐसी गलतियां होती हैं। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे यहाँ पर ये आता है, अरबों में आप ये चीज भी नहीं पाएंगे, जो अरबों की खूबियां हैं। और उनसे एक खूबी है कि बड़े से बड़े आलिम को आप कहेंगे ना कि आपने ये गलत किया, तो वो ऑफेंडेड नहीं होगा, वो कहेगा अच्छा चलो मैं चेक करती हूँ। और अगर गलती होगी वो मान भी लेगा, और अगर गलती नहीं होगी
تو आपको बताएगा भी कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे, मगर नाराज होकर नहीं कहेगा, वो आपसे डिस्कस करेगा, क्योंकि इल्म का तहम्मुल है उनमें। हमारे यहाँ तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, आप उस स्टूडेंट को कहिए ना कि बेटे ये गलत है, तो वो आगे से अकड़ जाएगा, साढ़े उस्ताद ने सही दसिया। क्योंकि हमारे यहाँ तालीम थोड़ी की दी जाती है, हमारे यहाँ जो है ना, एक इल्म नहीं सिखाया जाता, बल्कि फिरका वारियत की एक जो है ना वो तदरीस है यहाँ पर। और इल्म के साथ तहजीब नहीं, हकीकी इल्म के साथ इज्ज आता है। तो अगर कोई आपको कहे कहीं भी, मेरे लिए इंजीनियर है, तो एक बार ऐसा हुआ कि जापानीज आए हुए थे, ये लोग जापानीज के लिए काम करते हैं, टोयोटा वालों का ये काम करते हैं, तो नहीं सुजुकी वालों का, टोयोटा का नहीं सॉरी, सुजुकी वालों का। तो वो दोनों ही वैसे तो जापानीज हैं, लेकिन सुजुकी वालों के लिए लोग करते हैं। तो सुजुकी वाले सीनियर्स आए हुए थे, इंजीनियर वहां के, जापान के, और जापानीज थे। तो वो कोई ड्राइंग कोई वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे। तो मेरे मियाँ ने, जो ट्रांसलेटर था पाकिस्तानी उनके लिए, तो उसको कहा कि ये गलत बता रहा है। तो वो कहने लगा सर जब पानी है तो तुसी कह रहे हो, तो मेरे मियाँ ने कहा नहीं वो गलत बता रहे हैं आप कहीं। तो उन्होंने नहीं, तो मेरे मियाँ को जो है ना जापानीज तो नहीं आती, पर मोटे मोटे चंद लफ्ज तो गलत से कहते ने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलत है गलत है। वो रुक गए, तो उन्होंने वो ट्रांसलेटर का कि क्या कह रहे हैं, आप बताना पड़ा ट्रांसलेटर को, उनका कि ये कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने ना अ, मेरे मियाँ को पकड़ा दिया, क्या होता है बोर्ड मार्कर, कि आप आके बताएं। कुछ नहीं कहा उन्होंने, प्रॉपर नॉर्मल तरीके से। हमारे तो वही बात है, गुस्सा खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप आएंगे ले बताएं कहाँ गलती है। तो मेरे मियाँ ने वो गलती बताई कि आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे होगा तो ये होगा, जो भी उनकी ड्राइंग थी ऐसे होना चाहिए। तो उसने उन्होंने बात सुनी, और फिर वो कहने लगे कि हाँ आपने सही कहा। और फिर उन्होंने वो यानी कि एक्सेप्ट भी किया, और 2 दफा उन्होंने ये बात कही कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये ड्राइंग में ये फ्लॉ था। ये अहले इल्म की बात होती। जो आलिम होगा ना, वो गलती समझ जाएगा और मान लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और जिसको इल्म आता है वही तो गलती करेगा। मैं घर से ही मिसाल देती हूँ, जिसको बिरयानी पकानी ही नहीं आती, वो गलत सही क्या वो पकाएगा ही नहीं। आपको पकानी आती तभी तो कभी आपसे खराब भी हो सकती है। यही फर्क है। तो अहले इल्म हमेशा सुनते और मानते। ये बड़ा एक प्रॉब्लम का मसला है हमारे यहाँ। तो अल्लाह हम लोगों को आजिज़ी अता करे। आ, बड़ी खूबसूरत बात है कि जिनके पास हकीकी इल्म होता है ना, वो आजिज होते हैं। इल्म के साथ क्या आता है, झुकाव क्यों आता है? क्योंकि आप जैसे जैसे इल्म सीखते हैं आपको हैरत होती है, अच्छा इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, जिन्होंने इस इल्म को कंपाइल किया, वो भी तो है ना, है दुनिया में, तो इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। मेरी तो हैसियत ही कोई नहीं है। तो जिनके अंदर जहालत होती है ना, मगर वो कोई डिग्री ले लेते हैं, तो वो अपने आप को आलिम समझने लगते हैं। तो आलिम तो कोई हो नहीं सकता भाई, कुरान में सब तालिब इल्म होते हैं। तो जब भी आप लोग तिलावत सुना करें, तवज्जो से सुना करें, ये आपको सबसे ज्यादा सिखाएगा लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। एक मैं वो ही देख रही थी अपनी उस बहन को भी, वो तिलावत एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ कर रही थी ना, यानी कि जोर लगा लगा के, क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा जोर लगाकर, बहुत अपने गले पर बर्डन डालकर, जरूरत नहीं है। अरब भी ऐसे तिलावत नहीं करेगा, आर्टिफिशियल साउंड नहीं बनाएगा। हमें लगता है हमें बनाना चाहिए। गैर जरूरी हरूफ को मोटा करना जरूरत नहीं है। आपका सांस बहुत लंबा नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा करने में एफर्ट करना जरूरत नहीं। तो आर्टिफिशियलिटी की बजाय नेचुरल लाइन स्टाइल, जो आपका नेचुरल स्टाइल। और आप कभी अरब कुर्रा को सुनते हैं अगर तो आपने देखा होगा वो एफर्टलेसली पढ़ते हैं। और जो हमारे मकामी लोग हैं, एक दो को निकाल कर अगर आप सुनेंगे तो आपको बाकायदा पता चलता है वो एफर्टफुली पढ़ते हैं। वजह ये है कि हम कोशिश करते हैं अरब कुर्रा की नकल करने की। मत करें, मत करें, हर कोई अलग अलग है। लबो लहजा दुरुस्त करके अपना स्टाइल लेकर चले। हर किसी का स्टाइल अलग होता है, कोई किसी जैसा नहीं बन सकता, है ना? तो आप दूसरे जैसा बनते बनते अपनी पहचान गवा देंगे। अपनी तरह पढ़। हाँ, चलिए आपको एक लतीफा सुनाती हूँ। लतीफ बात है एक्चुअली ये। राहत इंदौरी जो है ना, एक इंडियन शायर है, थे अब तो वफात हो गई है उनकी।
تو उन बेचारे के ना मुंह पर पैचेस थे शुरू से, बचपन से, यानी कोई बीमार शिमार हुए होंगे, तो उनका मुंह पर जगह जगह ब्लैक पैचेस थे, स्किन पैची हो जाती है ना, तो उनकी थी, बचपन से थी। तो खूबसूरत नहीं थे बेचारे, तो बड़े अच्छे शायर थे, और उनका एक खास अंदाज था पढ़ने का। तो एक मुशायरा हो रहा था, तो वहां पर एक नौजवान ने अपने अशार पढ़े, मगर बिल्कुल राहत इंदौरी के स्टाइल में, यानी कि बहुत फैन रहा होगा, यंग लड़का था, उसने उनको बहुत कॉपी किया। तो इस तरह से पढ़ा कि यानी कि सबको विविडली फील हुआ कि ये तो बिल्कुल राहत इंदौरी को कॉपी कर रहे हैं। तो वहां पर एक और शायर सीनियर थे, वो बैठे थे मुशायरे में, मैं उनका नाम याद करने की कोशिश करी, नाम तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। खैर, तो वो उसको जब उसने शेर पढ़ लिए, तो वो कहने लगे कि साहबजादे, राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला कराना पड़ता है। असल बात ये है, किसी के जैसा मत बने, आपका अपना एक नेचुरल स्टाइल बनेगा। सिर्फ लबो लहजा दुरुस्त कीजिए, और फिर अपने आप को आजाद कीजिए, आपका अपना एक अच्छा स्टाइल बनेगा। हर किसी का पर्सनल स्टाइल होगा, किसी का सांस लंबा है, किसी का सांस छोटा है, कोई हाई नोट पे पढ़ता है, कोई लो नोट पे पढ़ता है, किसी की आवाज में जलाल है, किसी की आवाज में जमाल है, कोई स्वीट साउंड वाला है, स्वीट वॉइस वाला है, और किसी की आवाज सोतों को जगाती है। तो हर बंदा अलग है। तो ये दो चार चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें बहुत अच्छी होंगी। ज़ौद और हमजा, ये दो हरूफ हैं जिन पर आवाज बंद हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बहुत ताकतवर हरूफ। तो ज़ौद को जब हम अदा करते हैं साकिन करके, तो आवाज मखरज में बंद हो जाती है। जुबान पीछे से उठी होनी चाहिए, और एक तरफ से आपके जुबान की कड़वट को आपके दांतों से, दाढ़ों से मिला होना चाहिए, फिर ये अदा होगा। हमजा पर तो जाहिर ऐसा नहीं होगा, जब अ को अदा करके जो में दाखिल होंगे तो ऐसा होगा। आओ, 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 इर, उर, आओ, इर, उर, आओ, इर, उर, आओ, इर, उर। इसमें मोटाई का भी आपने इक्वल ख्याल रखना। दूसरे हमारे दो हरूफ है, हरूफ लहातिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कौवा लटक रहा है, इसको भी लेहात कहते हैं, और तालू को बाजने का आखिरी सिरे पे लेहात कहते हैं। दोनों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मखरज वही है। ये आखिरी जो आपका हिस्सा है तालू का, ये बिल्कुल ये नाक के पीछे, अगर आप जुबान बिल्कुल सीधी करके लगाएं, जहां आप देखते हैं कि गला पका है कि नहीं पका है, और उसके पीछे ये कबा है, वो जो लटका हुआ गोश्त का टुकड़ा है, उसके अगले हिस्से से दोनों अदा होते हैं। काफ थोड़ा आगे से अदा होता है, और जो काफ है वो थोड़ा पीछे से अदा होता है, बस, और कोई खास फर्क नहीं है। वही दोनों का मकाम है मखरज का। तो कॉफ, 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 मोटा काफ जो है वो एग्जैक्टली उस जगह से अदा होता है। यानी कि नाक की जड़ के पीछे से अगर हम लेकर जाएं, तो सीधा अबूद गिरेगा, वहीं पर लाइन सीधी ड्रॉ होगी। कॉफ, कॉफ, काफ मोटा है, पर काफ बहुत मोटा हरूफ मुस्तालिया का हिस्सा है, पर ये ज़ौद तो और जैसा मोटा नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें वाव मत लाइए, खौफ नहीं है, खौफ है। हाँ, खौफ। इसकी मोटाई असल में नजर आती है सकून के अंदर। आक, आक, आक। आपका तालु इस मकाम पर जुबान से हल्का सा चिपक कर अलग होता है, तभी ये कलकला पैदा होता है। आक, इक, उक, आक, इक, उक, आक, इक, उक। जब पेश आए तो होंठ रोल कीजिए, पेश तो अदा करना है ना। आक, इक, उक। इसी से जरा सा पीछे काफ है, कैफ, जरा सा पीछे, इसी जगह से हल्का सा दो डॉट्स पीछे जो है वो छोटे काफ का मकाम, कैफ, कैफ। इसमें हा नहीं लाना, काफ,
काफ। और इसको जब हम अदा करते हैं तो इसमें कलकला नहीं होता। आक, इक, उक, ये जो थ का साउंड हल्का सा आता है, ये साउंड हवा है जो मुंह से रिलीज होती है, जैसे ता की तरफा होती है। आक, इक, उक, तो ये जरा सा आगे पीछे से अदा होते हैं, इसीलिए इनको हरूफ लिहातिया कहा जाता है। आक, इक, उक, आक, इक, उक। और इसके जरा से पीछे से काफ, डंडे वाला काफ अदा होता है, इसे छोटा काफ या बारीक काफ कहते हैं। आक, इक, उक। समझ आया? जिसको समझ नहीं आया वो पूछे। तो ये हमारे दो ग्रुप ही रह गए थे, तो आज आपके मखारिज मुकम्मल हो गए। ये पीछे पीछे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये ले, एक मुझे दे। ये देखें, ये जो पेज है इस पर ग्रुप के एतबार से मखारिज के सेट्स है। तो हरूफ मद्दा, हम अलिफ, वाव और या, ये जौफे दहन से यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। फिर हरूफ हलकी, 6 जो हर्फ हैं हमारे, आइन, हा, गैन, खा, हमजा, हा। फिर हरूफ लहातिया, खौफ, काफ। फिर हरूफ शजरिया, इन्होंने बैकवर्ड शुरू किया ना, हलक से शुरू किया। हरूफ शजरिया, जीम, शीन, या। जुबान और तालु के दरमियानी हिस्से के मिलने से अदा होते हैं। हरूफ हाफिया, हाँ ज़ौद में मैंने तरफी कह दिया और मैंने कहा कि मैं सही करती हूँ और मैं भूल गई। तरफिया तो लाम नून रा है। तो हरूफ हाफिया, हाफतुल लिसान और तरफुल लिसान, ये उर्दू में अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। हम उर्दू में तरफ कहते हैं साइड को, तो हम कहते हैं तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, मतलब वो तो उसकी साइड ले रहे हो। मगर अरबी में तरफ कहते हैं किनारे के चौड़े हिस्से को। इसीलिए जो नोक का पिछला हिस्सा है उसे हम तरफ कहते हैं, जो थोड़ा सा चौड़ा है। और साइड को हाफा कहते हैं, तो उसके हाफतुल लिसान, करवट या साइड। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो ज़्वाद जो है ये हरफे हाफिया है, एक ही हरफे इकलौता। तो ज़ोद, ज़ोद जुबान के हाफा से यानी कि करवट से या साइड से ये अदा होता है जब वो मिलती है दाढ़ों के साथ। हरूफ तरफिया जो जुबान की नोक के पिछले चौड़े हिस्से के मसूड़ों के साथ लगने से अदा होते हैं। तो ये हैं लाम, नून, रा। हरूफ नितोइया जो कि हमारी जुबान की नोक के मसूड़ों से लगने से अदा होते हैं। ता, दाल, तो। हरूफ इसाविया जो हमारी जुबान की नोक के सनाया उलिया के किनारे के साथ लगने से अदा होते हैं। सा, दाल, वो। हरूफ सफीदिया, जा, सीन, सोद जो हमारी जुबान की नोक सनाया उलिया और सनाया सुफला के किनारों के पीछे आने से अदा होते हैं। हरूफ शफविया जो हमारे होंठों की हरकत से अदा होते हैं। बा, मीम, वाओ, फा, फा। तीनों के मकसद में थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो आपको पता है। वाह जो है वो होंठों के गीले हिस्से के मिलने से अदा होता है। मीम होंठों के खुश्क हिस्से के मिलने से अदा होता है। वाओ होंठों की गोलाई से अदा होता है। फा अदा होता है जब हमारे सनाया उलिया के किनारे हमारे निचले होंठ के गीले हिस्से पर आकर नरमी से लगते हैं। ये मखारिज यहाँ मुकम्मल हो गए। ठीक है, आगे कलकला के 5 हरूफ हैं। कलकला मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ बतौर सिफत। तो बा में कलकला है, दाल में कलकला है, जीम में कलकला है,
قاف میں قلقلہ ہے، تو میں قلقلہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 5 حرف ہیں جو حروف قلقلہ ہے. قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ صفت ہے، یہ صفت ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آواز کا پلٹ کر آنا. تو ہم اپنے مخرج میں اگر آواز کو نہیں پلٹاتے، زبان کو نہیں ہلاتے، تو یہ حروف سنائی نہیں دیتے. جیسے کہ قاف جو ہے، اگر آپ کہیں گے کہاں ہے قاف کا ساؤنڈ؟ نہیں آیا نا، آپ آواز بند ہو جاتی، اس لیے پھر ہم ہلاتے ہیں تاکہ آواز سنائی دے. اق اق. اب فرض کریں کہ لفظ ہے اقدار، بولتے ہیں نا اردو میں اقدار بولتے ہیں، عربی کا لفظ ہے اقدار. تو اگر اقدار کر دیں تو کاف نہیں سنائی دے گا، اقدار، اور بول بھی نہیں پائیں گے. وہاں آواز اور زبان دونوں سٹرک ہوئے ہیں نا. اقدار، سانس لیے بغیر آپ دار نہیں بول سکتے، تو پھر لفظ تو کہیں کا کہیں چلا گیا. آگے اب نہیں بولا جاتا. تو اس روانی کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ہم زبان موو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لفظ آگے چلتا ہے. تو یہ قلقلہ ہوتا ہے. اقدار 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 اقدار. اردو میں بھی ہم قلقلہ کرتے ہیں، آپ کاف بول ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. اقدار نہیں بول سکتے، یعنی روک کر توڑ کر بولنا پڑے گا. اق ہی کرتے ہیں آپ. لیکن دو باتیں، ایک تو بہت ویزیبل نہیں ہوتا، اور دوسرا شعور نہیں ہے کہ قلقلہ کر رہے ہیں. اس لیے وہ 5 حرف جن میں اگر ہم زبان کو متحرک نہ کریں مخرج میں، وہ حروف ادا نہیں ہو سکتے اور لفظ بھی ٹوٹ جائے گا. ان میں پھر ہم زبان کو متحرک کرتے ہیں. یہ 5 ہی ہیں. ترتیب سے آپ نے دیکھے ہیں، با جیم دال، قاف بعد میں ہے، تو پہلے، ویسے تو اور با کاف. لیکن اس کا ایک لفظ بنایا ہوا کتب جدن یاد رکھنے کے لیے، تو کر لیں، یاد کرنا ہے، ویسے ہی آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ. یہ 5 حروف قلقلہ کے ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اہم ہے. صفتیں، اصل میں صفت کا ایک علیحدہ چارٹ ہے صفات کا. 5 صفات ہیں، ہر حرف میں کم از کم 5، اور سم حروف ہیں جن میں 7 صفتیں پائی جاتی. لیکن ان میں آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں. ہاں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ صفتیں آٹومیٹیکلی ادا ہوتی ہیں. صرف 2-3 چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. جیسے را کی میں نے آپ کو بتائی صفت تقرید ہے، پلٹنا. ار کی صفت ارتاش. شین کی صفت تفشی ہے، پھیلنا. تو شین کی ادا کی جاتی ہے عربی میں. الشمس، کبھی بھی الشمس کر کے نہیں، اردو کی طرح الشمس کر کے نہیں گزر جائیں گے. الشمس، تو یہ دھیان رکھیں گے. اسی طرح سین سواد میں صفی کی صفت کو مد نظر رکھیں گے. اور وہ جو ساؤنڈ ہے السحر، تو سین کی سواد کی الصفیر، وہ ادا کریں گے. تو یہ یاد رکھنے کی چند چیزیں ہیں جو بتا دی. ایک اور اہم صفت ہے حروف کا موٹا ہونا، وہ بھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھا ہے، بھی سیٹ بھی دیکھیں گے. یہ چند اہم باتیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے، باقیوں کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی. جسے شوق ہو وہ کر لے، بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو. اچھا جی، 7 حروف ہے مستعلیہ. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، اردو میں ہم انہیں موٹا حروف کہتے ہیں، عربی میں ان کو موٹا نہیں، مفخم یا مستعلیہ کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ زبان کے اٹھانے سے ادا ہوتے ہیں نا. الب سے ہیں، علی سے ہیں. علی کس کو کہتے ہیں؟ بلند کو. تو الوت بلندی کو کہتے ہیں، اسی سے ہے مستعلی، بلندی والا. تو بلند زبان سے ادا ہوتے ہیں نا، زبان اٹھانی پڑتی ہے پیچھے سے. تو بڑا صحیح نام ہے نا مستعلیہ. وہ ہم نے اردو میں کیا ہوا، موٹا پتلا. خیر اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بیسیکلی نہ کوئی حرف موٹا ہے نہ کوئی پتلا. یہ مستعلیہ حروف ہے، ٹھیک ہے. یہ ادا ہوتے ہیں زبان کے اٹھائے جانے سے. تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کون کون سے ہیں. جوڑوں میں یہاں لکھے ہیں: صاد، زود، قو، غو، غین، خا، قاف. جوڑے اس میں 2 ہی ہیں، صاد، زود، تو، غو. یہ جوڑے ہیں. غین، فا، سوری قاف، یہ الگ الگ. تو یہ تینوں کا ایک سیٹ ہی سمجھے بن گیا.
अब इसमें ये याद रखें कि सबसे मोटे, इनमें भी ज्यादा मोटे हरूफ स्वाद, ज़ौद, तो और ज़ो है। गैन, ख्वा, काफ कम मोटे हो पाते हैं बेचारे। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि मोटा करने के लिए कभी आपने वाओ वाला फेल नहीं करना, यानी होंठ रोल नहीं करनी। मोटाई का ताल्लुक रोल अप होने से नहीं है, जुबान की जड़ के उठाने से है। तो नहीं है, तो है, तो ठीक है ना। तो सबकी आवाज आप देखें, खौ खौ हो नहीं करना। तो आपका मुंह जो है वो आ में खुलना है। आ मोटाई कहां से आई? जुबान के उठने से। तो ये मेन रूल है, ये याद रखना। अब एक रा का लफ्ज है, हर्फ है। अब जो हरफे रा है ये मोटा नहीं है, ये मुस्तालिया में से नहीं है। लेकिन इसका एक उसूल है कि अगर इस पर रा आ जाए, रा पर अगर जबर आ जाए या पेश आ जाए, जो हरफे रा है उस पर जबर या पेश आ जाए, या रा साकिन हो और पहले हर्फ पर जबर या पेश हो, तो रा मोटा कर दिया जाता है। और जेर हो रा पर या उससे पहले हर्फ पर जेर हो तो रा बारीक हो जाता है। जैसे दी बारीक है, दी, राजेर दी, और इर बारीक है। और अगर रा पर जबर आ गया और रा, तो थोड़ा सा मोटा है। और अगर उससे पहले हमजा जबर रा अर, तो ये मोटा है। और रा पर पेश आ गया, रा पेश रू, तो रा थोड़ा मोटा है। और अगर रा से पहले हर्फ पर पेश आ गया, हमजा पेश रा उर, तो वो मोटा है। तो री, रा, रू, थोड़ा सा फर्क आएगा। और इर, आर, उर, फर्क आएगा। हालांकि बेसिकली रा हरूफ मुस्तालिया में शामिल नहीं, ये एक कायदा है रा का, ठीक है। लाम मोटा हर्फ नहीं है, कहीं किसी हाल में भी रा मोटा नहीं होगा। सिर्फ इसमें जलाला का रूल है, इसमें जलाला मोटा और पतला होता है। इसमें जलाला से पहले अगर जेर आ जाएगा तो इसमें जलाला बारीक होगा, इसमें जलाला से पहले जबर या पेश आएगा तो इसमें जलाला मोटा होगा। जैसे बिस्मिल्लाह बिल्कुल बारीक है, बिस्मिल्लाह। और सूरह इखलास में हुवल्लाहु अहद, ठीक। तो ये इसी तरह फिर मोटे हो। तो इसमें जलाला का और रा का उसूल जो है वो तकरीबन सेम। एक और हर्फ है हमजा। हमजा इटसेल्फ हरूफ मुस्तालिया में नहीं है, मगर अगर हमजा से पहले जो हर्फ है वो मोटा है तो हमजा मोटा पढ़ा जाएगा। हरकत से ताल्लुक नहीं है इसका, इसका ताल्लुक हर्फ से। अगर हमजा से पहले जो आ रहा है, हर्फ वो मोटा है तो हमजा मोटा हो जाएगा, और बारीक है तो बारीक हो जाएगा। नेचुरल है क्योंकि वो उसका हिस्सा बन जाता है। जैसे अभी इसमें देख लीजिए, ये जो स्वाद है इसमें इसमें लिफ मद है, जहां पर हमजा ए साकिन आ जाए तो वो भी फिर ऐसे ही होता है, उसका झटका हो जाता है, इसलिए ज्यादा महसूस नहीं होता। तो लेकिन अगर तो के साथ फर्ज करें या सौत के साथ, तो ले लेते हैं, तो के साथ हमजा साकिन आया तो जबर हमजा, तो आप हमजा को बारीक नहीं करेंगे तो। और अगर बा के साथ हमजा साकिन आ गया तो फिर बा जबर हमजा बा, उसे मोटा नहीं करेंगे। और यही कायदा अलिफ मद पर भी आ जाता है। हाँ, मद भी जो होती है बा जबर अलिफ बा, मगर जब यही ज़ौद पर आई, ज़ौलीम के, तो ज़ो, आप उसको ज़ुआ नहीं करते क्योंकि मद लंबी है, तो ज़ौ तो बारीक हो जाएगा फिर। तो अलिफ मद भी अगर मोटे हर्फ के साथ आएगी तो हैवी होगी, और बारीक हर्फ के साथ आएगी तो बारीक होगी। लिहाजा अगर बा पर मद आई तो बा,
اور ذو پر مادائی تو ذو. اپنے اصل کے اندر نہ الف موٹا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور نہ ہی حمزہ. اپنے آپ پہ ان میں سے کوئی حروف مستعلیہ میں سے نہیں. لیکن اگر ان سے پہلے حروف مستعلیہ آ جائیں گے تو پھر یہ موٹے ہو جائیں گے, حمزہ بھی اور الف مد. یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی؟ کیونکہ یہ بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ را کیوں موٹا ہو رہا ہے, جو ہے الف کیوں موٹا ہو رہا ہے, اس کو باریک کیوں نہیں کر رہے. اس لیے نہیں کرتے کہ ان پر ان کے ساتھی کا ایفیکٹ آ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ بات یاد رہے گی. یہ باقاعدہ تجوید کے کچھ اصول ہیں. لام کے پڑھنے کا قاعدہ, تو لام کے پڑھنے کا قاعدہ یہی ہے کہ لام باریک ہے, اس میں جلالہ موٹا ہوتا ہے اور باریک بھی ہوتا ہے. اگر اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ جائے گا تو اس میں جلالہ باریک ہوگا, اس میں جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آئے گا تو موٹا ہوگا. پھر ایک اصول آتا ہے را کے پڑھنے کا قاعدہ, تو را کا قاعدہ بھی یہی ہے. اگر را پر یا را سے پہلے, رائے ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے گا تو را باریک پڑھا جائے گا, اور اگر را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے یا را پر زبر یا پیش آ جائے تو را موٹا پڑھا جائے گا, پور پڑھا جائے گا. ٹھیک. اور حمزہ کا قاعدہ اور الف مد کا قاعدہ بھی یہ ہے, اگر ان پر باریک حرف آئے گا, حرف, تو وہ باریک پڑھے جائیں گے, موٹا حرف آئے گا تو موٹے پڑھے جائیں گے. کلیئر؟ اٹ سیلف یہ موٹے باریک نہیں ہو. تو مخرج آپ کو کلیئر ہو گئے. پریکٹس اس کی چلتی رہے گی. یہ نہ سمجھیے گا کہ اگلا ہم شروع کریں گے سبق تو مخرج کی پریکٹس سے بے نیاز ہو جائیں گے. مخرج کی پریکٹس تو اب ہمیشہ چلے گی, تب تک ایٹ لیسٹ جب تک آپ بلا مشقت مخرج ادا کرنے کے لائق نہیں ہو جاتے. تو مخارج کی ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی ہے, پریکٹس کبھی کمپلیٹ نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے, تو پریکٹس روز کرنا ہے, ہم اس کو دہراتے بھی رہیں گے. مخارج کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا, ابھی تو آپ یاد کر کے, یہ کل اورل ہوگا, پھر ریٹن بھی ہوگا, تاکہ آپ کے مخارج پکے ہو جائیں. تو یاد کر کے آئیے گا. کسی بھی طرح سے سوال پوچھوں گی, یعنی کہ تا کا سیٹ کیا ہے, اس میں کون کون سے لفظ ہیں, نام آپ بے شک یاد نہ کریں, وہ آپشنل ہے. جو عربی نام ہے نا, نتا سوی, وہ آپشنل ہے. دل چاہے تو یاد کرے, نہ چاہے تو بالکل یاد نہ کرے. لیکن ویسے تو یاد کرے نا, تا کا سیٹ, جیم کا سیٹ, اس طرح کر کے یاد کر لیں کہ کون سے کہاں سے ادا ہونے ہیں, ان کا مخرج کیا ہے, اور اس کے کتنے حرف ہیں. ٹھیک. اور اسی کے اندر آپ شامل کریں گے کلکلا کے حروف کو اور حروف مستعلیہ کو. ٹھیک ہے. تو اسی کے اندر یہ کوشچن بھی ایڈ کروں گی میں کہ را موٹا ہے یا باریک, را کب موٹا ہوتا ہے, اس میں جلالہ موٹا ہے یا باریک, لام موٹا ہے یا باریک. ٹھیک ہے. یہ جو دو تین باتیں, کیونکہ یہ اسی سے متعلق ہے. تجوید میں ان کو علیحدہ ٹاپک بنا دیا جاتا ہے, وہ تکلف ہے, وہ اسی کا حصہ ہے. جتنا لٹکانے لٹکائی جاؤ, وہ تو پھر 2 سال پڑھتے رہو تجوید, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اسی کا حصہ ہے. تو یہ کل آپ کا اورل ہوگا. ٹھیک. اور ٹیسٹ سے گھبرا کر چھٹی نہیں کرنی, بی بریو. جو امتحان سے گزرے گا اسی کو آئے گا, جو کل چھٹی کرے گا اس کا پرسوں جائے گا. ہاں جی, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو دونوں دن آپ کا لوں گی ٹیسٹ, اور کل بھی پرسوں بھی, تاکہ آپ کی تیاری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جمعرات کو چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا, فل ان دی بلینکس ٹائپ کا, تو آپ نے کرنا ہے تاکہ مخارج پکے ہو جائے. جب تک آپ کے مخارج اتنے پکے نہیں نہ ہو جاتے کہ آپ کو سوچنا نہ پڑے, یعنی کہ آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے یہ نا تا ادا کہاں سے ہوتا ہے, اس سے نکلیں گے تو ادا کریں گے نا. آپ کو دماغ کو یاد ہو کہ تا پڑھنا ہے, تا یہاں سے ادا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیے ایک کھانا بناتے ہیں جس کی آپ نے ریسیپی لکھی ہے, آپ کو آتی نہیں ہے, کوئی چائنیز اٹالین ڈش آپ نے سیکھی ہے, تو پھر آپ کو بار بار دیکھ کر پکانا پڑتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں, اچھا اے پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, اچھا اے بھی ہونا ہے, وہ آپ کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے. آپ اس کو رواں نہیں بنا سکتے. لیکن جب آپ بریانی بنانے کھڑے ہوتے ہیں, ایک چولہے پہ بریانی چڑھائی ہے, ایک پہ آپ نے لیٹ سپوز قورمہ رکھا ہے, ایک کے اوپر آپ کھیر بنا رہے ہیں, آپ سارا کچھ ساتھ ساتھ پکا لیتے ہیں. کبھی ہوا ہے کہ آپ نے بریانی میں میٹھا ڈال دیا ہو اور
मसाले जो है खीर में डाल दिए, कभी नहीं होता। और सारे खाने सही पक जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जानता है क्या करना है। तो वही महारत जो आपके खानों में है ना, कि आपको अजबर है, वही महारत आपको मखारिज में लानी होगी। तो अब खाने तो रोज पकते हैं, तो मखारिज कहाँ पकेंगे? दिमाग में। तो याद करना हो, ठीक है, तैयार हो जाए, कुछ नहीं होता। और जितना दिमाग को जगाएंगे, दिमाग ताकतवर होता चला जाएगा। तो आज हमारा मखारिज का मौजू ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी कंप्लीट नहीं होगा। मखारिज से बेनियाज सिर्फ अहले अरब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में सीखे हैं ना। जैसे उर्दू हमें सीखनी नहीं पड़ी, हमने अपनी अम्मियों से सीख ली। इस यही कह रही हूँ आपा, कि उन्होंने अपनी माँ से सीख ली है ना। माँ से अहले जुबान ही सीखेगा, जो गैर अहले जुबान सीखेगा वो उस्ताद से सीखेगा। जैसे अंग्रेजी सीखी है हमने, तो हमने इतनी मुश्किल से अंग्रेजी सीखी है ना, ब्रिटिश स्टाइल की, तो अब आ गया अमेरिकन स्टाइल, है ना। वो जब हम बेफिक्र हुए कि अब हमें इंग्लिश आती है, ब्रिटिश कन्वर्सेशन आपको समझ आ जाती है, तो अब आ गई अमेरिकन मैदान में। अमेरिकनों की तो सारी ऊपर से गुजर जाती है ना, कुछ समझ नहीं आता क्या कह के गए, होता है ना। लिहाजा हमारे अपने बच्चे जो ओ लेवल ए लेवल की बजाय वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कर रहे हैं, उनका बोलना हमें समझ नहीं आता। तो ये एक्सेंट से, तो एक्सेंट से बेनियाज सिर्फ अहले जुबान हो सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये कोशिश करते रहे सारी उम्र, लेकिन ये मैं वैसे आपको समझा रही हूँ, लेकिन आपका हफ्ता 2 हफ्ते आपने लगा लिए ना, आपको बुनियादी मखारिज आ जाएंगे। बाकी हुस्न के तो फिर कोई लेवल नहीं है ना, वो तो फिर जितना चाहे बढ़ाते जाओ। कल हम मद्दात का टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, है ना। बड़ा हैवी टॉपिक लगता है नहीं, डराते ज्यादा है। हमारे यहाँ जिस चीज की कदर की जाती है ना, उसका खौफ बड़ा पैदा किया जाता है। जैसे अब्बा से बहुत डराया गया, है ना, कुरान से बहुत डराया गया। और तजवीद का भी इल्म पहले पहले डर के बिना पर ही लाई, इनके तजवीद अभी तो शुरू हुई है। हमारी अम्मियों के दौर में तजवीद का ता भी नहीं पता था किसी को, हमारे जवानी में ये शुरू हुई है। तो पहला तासुर जिन्होंने सीखा चंद एक थे, तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल इल्म। मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, उन्होंने हमें सिखाया, मगर उन्होंने साथ पहला पहला पैगाम हमें ये दिया, बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं सीख सकता, बड़ा मुश्किल। तो बड़े हो गए हुए थे, तो डंडे तो नहीं वो मार सके, मगर जुबान के बड़े डंडे मारे उन्होंने, और नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर लोग भाग गए। तो भैया पता है क्या है, मैं आपको सीरियसली कहती हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, नई चीज है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, कोई मसला नहीं है। आप उर्दू भी सिखाएंगे ना एक अंग्रेज को, तो वो क्या पहले दिन सीख लेगा? टाइम लगेगा। और आम करने की बात है। आप देखिए, एक वक्त था हमारी माओ को एबीसी नहीं आती थी, नहीं आती थी ना। आज आपकी काम वालियां कहती हैं सॉरी बाजी जी। है ना, बाजी मेरा पुत्र तो स्टोरी ही पांदा रहना। हाँ, बाजी मैं चेयर ले लवा, बाजी टेंशन ही बड़ी है, बाजी मैंने तो डिप्रेशन हो गया। आपकी अनपढ़ अंगूठा से आप काम वाली आपको 10 अंग्रेजी के लफ्ज सुना कर जाती हैं। आपके दादाजी बैठकर जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए, वो कहते हैं क्रिकेट मैच तक ही बने, किन्ने रन हो गए ने, है ना, किन्ने ओवर हो गए ने, कितने अंग्रेजी बोल रहे हैं। आम होने की बात है। तो जब तजवीद को आम करेंगे ना, तो आपकी काम वालियां भी सुन सुनकर सीख जाएंगी, क्योंकि पहला जरिया इल्म है सीमा, सुनना। सुनना, क्योंकि तजवीद से पढ़ा ही कभी नहीं गया हमारे यहाँ, तो वो किसी को समझ ही नहीं आया। अगर हम तजवीद सुनाए, और मैं अपने तजर्बे से आपको कहती हूँ, मेरी सिर्फ पहली पोती नूरुल हुदा है जिसे मैंने तजवीद टीच की है, बाकी दोनों को नहीं करनी पड़ी। नूर के वक्त में मैं पढ़ाती तो बहुत थी, मगर तजवीद नहीं पढ़ाती थी, मैं खुद पढ़ रही थी। तो फिर मैंने तजवीद पढ़ानी भी शुरू कर दी, और कुरान बहुत चलने लगा। पहले भी चलता था, मगर मैं पर्सनली यानी एयरफोन लगाकर सुनती थी वगैरह इस तरह। तो नूर को सुनाने के लिए चलाना शुरू कर दिया, नूर सो नहीं रही तो लगा दिया, और नूर को अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत शौक पैदा हुआ। सूरह बकरा रेगुलर चलती रही हमारे घर, अभी भी चलती है। रुकिया तो नूर की पैदाइश के बाद रोज चला, पूरा रुकिया सुनते थे। तो उसका जो वैसे तो फायदा हुआ, नजर बद असरात ये वो तो जो फायदा हुआ हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे बच्चों ने
मिरहा, फातिमा, उमामा, मरियम, इन्होंने जो पहली चीज जुबानी याद की ना, वो रुकिया के मुख्तलिफ हिस्से थे, जिसको जो याद हो गया। वो रुकिया चलता था ना, वो साथ साथ पढ़ती थी, छोटी छोटी 2.5 पौने 3 साल की, वो साथ साथ पढ़ती थी। तो वो उनकी तजवीद, वो अलमाशारे का मुझे पसंद है, मैंने उन्हीं का डाउनलोड किया हुआ था। तो वो सुन सुनकर उनकी तजवीद रवां हो गई, हमें उन्हें तजवीद सिखानी नहीं पड़ी। और उनकी तजवीद, नूर की बहुत अच्छी तजवीद है, लेकिन बहरहाल अ, एक हल्का सा फर्क जो अहले इल्म फील कर सकते हैं, वो चीज उमामा और मिरहा में नहीं आई, क्योंकि वो अहले अरब की तरह की तजवीद है उनकी। क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत बचपन में उनका लहन सीखा, और बगैर कोशिश के सीखा, सिखाया नहीं हमने, सुनाया सिर्फ। तो वो मैं आपको अपने तजर्बे से कहती हूँ कि जो सुनने से इल्म आता है वो बहुत कभी होता है। तो इसको आम करें, घरों में आप चलाएं, आपकी मेट सुनेंगी ना, उनको भी खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। ये नेचर है, और ये नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है। तो सुनाए 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 सुनाए, खुद को भी और लोगों को भी। तो आप देखेंगे कि आपको आना शुरू हो जाएगा। आप कोई गाना अगर सुनना शुरू कर दो, तो आप देखिए वो आपको उसकी ट्यून खुद ही आनी शुरू हो जाती है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। तो यही बात। तो सुने, कुरान को पढ़ने के अलावा कुरान को सुने। सूरह इखलास की किस किस ने प्रैक्टिस की? बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। चलिए दाएं हाथ से शुरू करते हैं। यास्मीन सुनाइए। चलिए एक बार जरा मिलकर पढ़िए, सब मिलकर पढ़े, शुरू करें, आऊज़ बिल्लाह से सुनाना शुरू करें। एक बार फिर पढ़ना है आपने, और मिलकर पढ़ना है, आगे पीछे नहीं होना। जो आगे जा रहे थे वो साथ पढ़े। दोबारा शुरू करें। सौदक अल्लाह। सौदक अल्लाह में भी स्वाद मोटा है, काफ मोटा है, इसमें जलाला मोटा है, अजीम का ज़ौ मोटा है ना? तो सदक अल्लाह अजीम थोड़ी हो जाएगा। सौदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हुल के लाम पर कलकला नहीं करना। ठीक, माशाअल्लाह। आपका इनफरादी बाद में सुनूं एंड पर। और किस किस को, कौन कौन से लोग मैंने हैंड ओवर किए थे? समीना, आपके जिम्मे कौन कौन था?
چلیے میں ابھی پہلے ہم اپنی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہماری، اگلی کلاس کے لیے نئی ظاہرہ ہماری ہوگی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.